Hello everyone, welcome to the channel Social Science with Dipankar. Today the topic that we are going to discuss is religion, the social division that is based on religious differences. In my previous video, I discussed the gender division. See, the social division based on religious differences is not as universal as the division that is based on gender. Whereas religious diversity in today's world is more widely spread. It is more widespread, we can see, in today's world, right? And the gender division that in my previous video I discussed in great detail. Those of you who haven't yet watched that video, please kindly go through that, and I would request to watch the video till the end so that you can understand the whole topic. Okay, in the present world, in many countries, including our country, the population that we have, it is having the followers of different religions. Okay, the followers of different religions are there. Let us just take the case of Northern Ireland also. We understand that people, those who follow the same religion, right, people following the same religion, they might have serious differences as regards the way that they practice their religion. मतलब लोगों के बीच में, सेम रिलीजन के लोगों के बीच में भी सीरियस डिफरेंसेस हो सकते हैं रिगार्डिंग द वे हाउ दे प्रैक्टिस देयर रिलीजन, दैट पर्टिकुलर रिलीजन. ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, यानी कि जो सोशल डिवीजन दैट इज बेस्ड ऑन रिलीजियस डिफरेंसेस इज मोर एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स देन द जेंडर डिवीजन. तो जेंडर डिवीजन के कंपैरिजन में हम देखेंगे जो सोशल डिवीजन रिलीजियस डिफरेंसेस के ऊपर आधारित है वो ज़्यादा एक्सप्रेस होती है पॉलिटिकल फील्ड में या पॉलिटिकल एरेना में कंपेयर टू द जेंडर डिवीजन, राइट. मैंने पहले भी बात की थी कि इनिशियली द जेंडर इशू वाज नॉट टेकन अप वेरी सीरियसली, बट लेटर ऑन विद द वुमेन्स मूवमेंट फॉर द इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, gradually, and later on the political parties, the political classes, they realized the importance of the opposite gender, the importance of women and their role in public life. So the gender issue was also taken up seriously later on, right? But the issue of religion has always been a very favorite topic, a topic of great interest to the political class, to the political parties. Okay, so we shall start, but before we start I would request you to just kindly be there, watch the video till the end so that you understand the whole topic. And those of you who haven't yet watched the previous video, kindly go through that previous video also, because in this chapter we are going to discuss three topics. The first one that has been already done, the gender, and the second one that I am going to start, religion, and the third one we are going to discuss in my next video, that will be caste. Okay, so बहुत important chapter है, बहुत important topic जो हम यहाँ पे discuss करने जा रहे हैं. तो इसको हम दो aspects में बात करेंगे, positive aspects और negative aspects. ठीक है, तो religion का positive aspect यानी कि how can what is the relationship of religion and politics, or in the other words, why can't religion be separated from politics? Religion should not be separated from politics. एक तो ये argument है, one set of argument says why religion cannot be separated from politics. The other set of argument talks about the negative aspects of involving religion or mixing religion with politics. What can be the serious repercussions, the serious results of mixing religion in politics. ठीक है, तो दो एस्पेक्ट्स में हम बात करेंगे. पॉजिटिव एस्पेक्ट्स वो है कि रिलीजन कैसे पॉलिटिक्स में यूज होना चाहिए, या पॉलिटिकल एक्सप्रेशन कैसे होना चाहिए रिलीजन का, और हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से रिलीजन और पॉलिटिक्स में किस तरीके से जो रिलेशनशिप है वो बेहतरी के लिए हो सकता है, और वहीं दूसरी तरफ हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो पॉइंट्स मेरे पीछे लिखा हुआ है बोर्ड पे. सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं आइडियल्स एंड वैल्यूज.
drawn from, यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, drawn from every religion, every religion, ठीक है. So ideals, values drawn from every religion. हर एक religion की अच्छी बातें होते हैं. महात्मा गांधी used to say that religion can never be separated from politics. Okay, the reason being, by religion he didn't mean any particular religion like Hinduism or Islam. He only meant by religion the good values, the moral values, the ethics that from every religion we get. That must be in a situation that, you know, the moral values drawn from all religions must guide our politics, must guide our state. Just as, you know, good values, moral values help an individual to have a better life, to have peace in life, to have success in life, or to have, you know, to show the right path to an individual, we take help of religion. Okay, in the same way religion can also help the state, right? So we are not here talking about any particular religion. किसी particular religion की हम बात नहीं कर रहे हैं. सभी religion की जो अच्छी बातें हैं, moral values हैं, वो politics को guide करना चाहिए. Politics कैसी होनी चाहिए, उसमें religion की अच्छी बातें politics को सही रास्ता दिखाने का काम करना चाहिए. ठीक है, तो ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है. आइडियल्स एंड वैल्यूज ड्रॉन फ्रॉम एवरी रिलीजन कैन एंड परहैप्स शुड प्ले अ रोल इन पॉलिटिक्स. तो इसमें महात्मा गांधी जी की बात हमने कोट की, और किस तरीके से एथिक्स, दैट मीन्स द मोरल वैल्यू ड्रॉन फ्रॉम एवरी रिलीजन मस्ट गाइड द स्टेट, मस्ट गाइड आवर पॉलिटिक्स. ठीक है, दूसरा क्या है, पीपल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स देयर इंटरेस्ट, नीड्स एंड डिमांड्स एज मेंबर्स ऑफ ए रिलीजियस कम्युनिटी. अगर जैसे मैं एक मेंबर हूँ किसी रिलीजियस कम्युनिटी का, तो बीइंग ए मेंबर ऑफ ए रिलीजियस कम्युनिटी, मैं इस सिचुएशन में होने चाहिए कि आई शुड बी एबल टू एक्सप्रेस माई नीड्स, इंटरेस्ट एंड डिमांड्स. जो भी मेरे डिमांड्स हैं एज मेंबर्स ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी, एज मेंबर ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी, आई कैन एक्सप्रेस माई नीड्स, आई कैन एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट. ठीक है, तो ये चीजें होनी चाहिए. जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की अगर हम बात करें, तो दे आर्ग्यूड दैट इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ कम्युनल राइट्स, the victims are the people from the religious minorities. The victims are the people from the religious minorities. So the government must take up some action, or government must make some policies so as to protect the religious minorities. तो religious minorities की protection के लिए state को इंटरवीन करना चाहिए, स्टेट को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए ताकि रिलीजियस माइनॉरिटीज को भी ये इंश्योर किया जाए कि दैट दे आर आल्सो द पीपल और द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, एंड दे शुड नॉट लिव इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ इनसिक्योरिटी. ठीक है, सो दे शुड बी गिवन अ कॉन्फिडेंस, ठीक है, बाय द स्टेट, बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट से उनको ये अश्योरेंस मिलना चाहिए, ये भरोसा मिलना चाहिए कि उनको किसी भी हालत में डर कर नहीं रहना है, बल्कि इक्वल सिटीजन्स के तौर पे उन्हें रहना है. क्योंकि हमने देखा, अभी बात की कि कम्युनल राइट्स के केसेस में ज़्यादातर जो पीड़ित होते हैं वो लोग होते हैं जो रिलीजियस माइनॉरिटीज से बिलोंग करते हैं. तो ऐसे में गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो रिलीजियस माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी कदम उठाए. ठीक है, तो ये इसी बात को इसमें समझाया गया है कि पीपल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स देयर इंटरेस्ट, नीड्स, डिमांड्स एज मेंबर्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी. नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि गवर्नमेंट शुड समटाइम्स बी एबल टू रेगुलेट, और दोज हु आर होल्डिंग द पॉलिटिकल पावर, दे शुड बी एबल टू रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन. ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन सो एज टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन. Now this point says that, you know, many women's movement, they argued that family laws of all religions, what family laws क्या होते हैं, those laws which are relating to, you know, family, the subjects such as, you know, marriage, divorce and inheritance, इन मामलों को लेकर
डिफरेंट रिलीजन के अपने अपने फैमिली लॉज हो सकते हैं, ठीक है। तो समटाइम्स these family laws can be discriminatory, particularly against women, ठीक है। खासतौर से वुमेन के अगेंस्ट इस तरह के फैमिली लॉज उनके ह्यूमन राइट्स को कहीं ना कहीं वायलेट करते हैं। उनकी जो पर्सनल फ्रीडम है, उनकी जो इंडिविजुअल फ्रीडम है, उनकी जो इंडिविजुअल डिग्निटी है, उसको कहीं ना कहीं कर्टेल करने का काम करती है, या उनको कहीं ना कहीं इक्वल अपॉर्चुनिटी अवेल करने से रोकने का काम करती है। तो ऐसे फैमिली लॉज से वुमेन को बचाने के लिए, या कोई भी जो विद इन द सेम कम्युनिटी अगर वो ऑपरेस हो रहा है, अगर उसके वो दमन हो रहा है, तो ऐसे में गवर्नमेंट को इंटरवीन करनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द गवर्नमेंट द राइट टू इंटरवीन इन सच मैटर्स सो दैट गवर्नमेंट कैन एंश्योर इक्वालिटी, ठीक है। गवर्नमेंट ताकि इक्वालिटी को एंश्योर कर पाए, क्योंकि ऑलमोस्ट किसी पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं हो रही है, सभी रिलीजन के जो फैमिली लॉज हैं वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटरी होने के चांसेस होते हैं उनके, और कहीं ना कहीं किसी न किसी कम्युनिटी को विद इन द सेम कम्युनिटी, अगर हम बोलते हैं कि चाहे वो वुमेन हो या कोई और लोग, नॉर्मली इट इज द वुमेन who suffer from the disadvantage, okay, the family laws might be discriminatory against them. So that is the reason why the government must intervene or must regulate the practice of religion so as to prevent discrimination and oppression. तो इसमें ये समझना है कि religious freedom तो है ही है, लेकिन in the name of religious freedom one cannot curtail the rights of an individual. तो जब भी किसी भी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं रिलीजियस फ्रीडम के नाम पर, तो उस केस में गवर्नमेंट मस्ट बी एबल टू रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन। जैसे हम देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या करते हैं, अनटचेबिलिटी को, कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी को बैन करता है, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी को बैन करके भी जो है जो प्रैक्टिसेस है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, उसको रेगुलेट करने का काम किया ताकि अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस ना हो, ठीक है। कहीं ना कहीं अनटचेबिलिटी को ऐसा दिखाया गया कि ये रिचुअल्स द्वारा जो है सैंक्शनड है, ठीक है। तो इसलिए जो है फैमिली लॉज, खासतौर से जो हम बात बता रहे थे, फैमिली लॉज जो कि डिस्क्रिमिनेटरी हो सकते हैं, तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए। तो ये सब जो पॉलिटिकल एक्ट्स हैं, these are good as long as the government of the country treat every religion equally. ये इसमें कोई बुराई नहीं है कि गवर्नमेंट इसमें अगर पॉलिटिक्स, यानी कि पॉलिटिक्स और रिलीजन का जो मेल हो रहा है, इसमें कोई भी बुराई नहीं है, एज फार एज गवर्नमेंट ट्रीट्स एवरी रिलीजन इक्वली, ठीक है। तो चिल्ड्रन, नाउ लेट अस टर्न टू द नेगेटिव एस्पेक्ट्स, ठीक है। कैसे रिलीजन और पॉलिटिक्स सेपरेटेड होना चाहिए, उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, क्या आर्गुमेंट दे सकते हैं कि रिलीजन और पॉलिटिक्स शुड बी सेपरेटेड, ठीक है। ये कब होता है, जब हम देखते हैं कि प्रॉब्लम कब आती है, व्हेन रिलीजन इज सीन, जब रिलीजन इज सीन एज द बेसिस ऑफ द नेशन, ठीक है। जब व्हेन रिलीजन इज सीन एज द बेसिस ऑफ द नेशन, जब रिलीजन को ही आधार बनाया जाता है, रिलीजन ही एकमात्र सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो जाता है, राइट। अगर सोशल डिवीजन जो क्रिएट कर रहे हैं और हम रिलीजन के आधार पर ही सारी चीजें और रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में ही देखते हैं, तो अदर प्रेसिंग इश्यूज दे माइट बी इग्नोर्ड, राइट। तो ऐसा कब होता है, व्हेन रिलीजन इज सीन एज द बेसिस ऑफ नेशन, तब प्रॉब्लम चालू होती है। प्रॉब्लम की शुरुआत तब होती है जब रिलीजन को ही नेशन का आधार समझा जाता है, ठीक है। तो ये हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं, बच्चों ध्यान से सुनना है इस बात को। फिर प्रॉब्लम बिकम्स मोर एक्यूट, प्रॉब्लम और ज्यादा एक्यूट कब हो जाती है, और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कब हो जाती है, जब when religion is expressed in politics, when religion is expressed in politics in exclusive and partisan terms, जब रिलीजन को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, एक्सक्लूसिव टर्म्स में सोचा जाते हैं, बाकी चीजों को हम छोड़कर रिलीजन को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, एक्सक्लूसिव टर्म्स में सोचेंगे, और पार्टीजन टर्म्स में, लॉयलिटी के टर्म्स में अगर हम सोचेंगे कि अगर हम जैसे
गवर्नमेंट की बात करें, किसी पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप के प्रति अपनी लॉयल्टी दिखाता है और उसी के ही फेवर की बात करता है और उसी के ही डिमांड्स और इंटरेस्ट और नीड्स को एड्रेस करता है या उसी को ही अपना ड्यूटी मानता है और बाकी रिलीजियस कम्युनिटीज के कॉस्ट पे ये सारी चीजें करते हैं, तो वो जो है आप मान सकते हैं, कह सकते हैं कि आप एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी की तरफ ध्यान दे रहे हैं एक्सक्लूसिव टर्म्स में, यानी कि अदर रिलीजियस कम्युनिटीज को आप इग्नोर कर रहे हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल इट एक्सक्लूसिव अटेंशन। आप किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को पे कर रहे हैं, अटेंशन पे कर रहे हैं। दूसरा पार्टिजन टर्म्स जो बात कर रहे हैं कि जिसमें हम लॉयल्टी एक्सप्रेस करते हैं एक पर्टिकुलर रिलीजन के प्रति और इस तरीके से लॉयल्टी दिखाते हुए हम उसको अपीज करने की कोशिश करते हैं, उस पर्टिकुलर रिलीजन के फॉलोअर्स को एकजुट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, फॉलोअर्स ऑफ एनी रिलीजन कमिंग टुगेदर, दैट इज वन थिंग, दैट शुड बी देयर शुड बी यूनिटी ऑफ followers of different religion, that is one thing, but in every context to bring them together, because we have seen in case of Northern Ireland also, ठीक है, North Ireland, in case of North Ireland we've seen that how there can be serious differences within the same religious community about the way that religion will be practiced। किस तरह से सेम religious community में भी differences हो सकते हैं, ठीक है। तो जब हम लोगों को एकजुट लाने की कोशिश करते हैं ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन अदर देन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिलीजन, अदर देन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलीजन, तो शायद हम उसी रिलीजियस कम्युनिटी के अंदर कई सारे लोगों की आवाज को दबाने का भी काम कर रहे हैं, शायद उनके होप्स और एस्पिरेशंस को भी हम दबाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए एक्सक्लूसिव और पार्टिजन टर्म्स में जब रिलीजन को एक्सप्रेस किया जाता है पॉलिटिक्स में, तब वो प्रॉब्लम और ज्यादा सीरियस हो जाती है और ज्यादा ग्रेव प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो इसमें आप देखते हैं, और ऐसा तब होता है व्हेन वन रिलीजन एंड इट्स फॉलोअर्स, ठीक है, जब एक रिलीजन और उस रिलीजन के लोगों को पिट किया जाता है, पिटेड अगेंस्ट अनदर, पिटेड अगेंस्ट अनदर, मतलब व्हेन वन रिलीजन एंड इट्स फॉलोअर्स आर they are pitted against other religion, okay, when we are what we are doing, we are trying to create a confrontation, we are trying to create a confrontation, एक confrontation पैदा किया जाता है एक रिलीजन के लोगों को, एक रिलीजन के जो फॉलोअर्स है अगेंस्ट दी अदर रिलीजन, मतलब आमने सामने हम खड़ा कर देते हैं एक फॉलोअर माने फॉलोअर ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन अगेंस्ट दी फॉलोअर्स ऑफ अदर रिलीजन, ठीक है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। कोई क्वेश्चन है प्लीज जरूर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें और क्वेश्चंस पूछिए, ठीक है। और ऐसा कैसे होता है, सबसे पहला चीज क्या है, व्हेन द बिलीफ्स ऑफ वन रिलीजन आर प्रेजेंटेड एज सुपीरियर। प्रॉब्लम तब बढ़ती है, तब होती है जब एक रिलीजन और एक रिलीजन के फॉलोअर को दूसरे रिलीजन के फॉलोअर के सामने उसके अगेंस्ट में पेश किया जाता है या उसके ऑपोजिशन में पेश किया जाता है। और ऐसा किस तरीके से होता है, इन फॉलोइंग तरीके से होता है। कौन कौन से, जब एक रिलीजियस कम्युनिटी के जो बिलीव्स हैं उसको ऐसे दर्शाया जाता है, ऐसे दिखाया जाता है कि वो सुपीरियर है, ठीक है, सुपीरियर टू दोज ऑफ अदर रिलीजन, ठीक है। व्हेन बिलीफ सिस्टम ऑफ वन रिलीजन इज प्रेजेंटेड एज ए सुपीरियर सिस्टम, ठीक है, टू द बिलीफ सिस्टम ऑफ अदर रिलीजन, जो दूसरे रिलीजन के बिलीफ सिस्टम से किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के बिलीफ सिस्टम को बेटर दिखाया जाता है, सुपीरियर दिखाया जाता है, तब प्रॉब्लम होती है। दूसरा तरीका क्या है, व्हेन डिमांड्स ऑफ वन रिलीजन आर फॉर्म्ड इन ऑपोजिशन टू अनदर, you being a government, being in power, you can cater to the needs, you can fulfill the demands of different religious people, that is not a problem. But whenever the demands are formed in such a way, they are acting in opposition to those of other religion, ठीक है। when we are doing it, when we are fulfilling the demands of one religion at the cost of other religion, जब ये at the cost of other religion हो जाता है तब प्रॉब्लम होती है, ठीक है। आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन को दे, हेल्प करे, फेवर भी करे, कोई बात नहीं, लेकिन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू आर फेवरिंग वन, द अदर पॉइंट ऑफ टाइम यू आर फेवरिंग द अदर रिलीजियस कम्युनिटी। ये फेवरिंग भी बात नहीं है कि अगर आप किसी रिलीजन को गवर्नमेंट से सपोर्ट भी मिलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे रिलीजियस माइनॉरिटीज को मिलते हैं सपोर्ट, हम देखते हैं कि
गवर्नमेंट जब तक सभी रिलीजन को इक्वल ट्रीट करती है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को एक्सक्लूसिव और पार्टिजन टर्म्स में देखती है, या जब एक रिलीजन के लोगों को दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट जो है खड़ा कर दिया जाता है, या एक रिलीजन के बिलीफ सिस्टम को दूसरे रिलीजन के बिलीफ सिस्टम से सुपीरियर बताया जाता है, या एक रिलीजन के फॉलोअर के जो डिमांड्स होते हैं उसको इस तरीके से जो है उसको एक्सेप्ट किया जाता है कि दैट इज फॉर्म्ड इन ऑपोजिशन टू द डिमांड्स ऑफ अदर रिलीजन, मतलब आमने सामने एक टकराव की स्थिति, एक कॉन्फ्रंटेशन की स्थिति पैदा की जाती है। तीसरा जो है व्हेन स्टेट पावर इज यूज्ड, जब इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो जाती है टू स्टैब्लिश, क्या करने के लिए, टू स्टैब्लिश डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन ओवर द रेस्ट, ओवर द रेस्ट। तो जब एक रिलीजियस कम्युनिटी की डोमिनेशन को स्टैब्लिश करने में स्टेट पावर इन्वॉल्व होती है, यानी कि गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट करती है कि भाई आप जो एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग हैं आपको पूरी छूट दी जाती है कि आप दूसरे रिलीजन के लोगों के ऊपर डोमिनेट करें, इसमें आपका हम वी आर गिविंग यू द फुल सपोर्ट, यू कैन डू वॉट एवर यू लाइक, राइट, सो यू कैन डोमिनेट ओवर द रेस्ट, you can dominate over the other religions. This way the state power is used. Whenever the state power is involved in this, so these are, I mean, whenever the state power is involved in establishing the domination of one religion over the rest, that is also a form of communal politics. So all these, right, are the different ways by which communal politics is practiced. This is communal politics. ठीक है, जब एक belief को of one religion are presented as superior, when demands of one religion are formed in opposition to the other, and when the state power is used to establish the domination of one religion. तो इस तरीके से जो है communal politics practice की जाती है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा harmful है सोसाइटी के लिए और कंट्री के लिए। Let us go a bit deeper thinking about or talking about communalism. Communalism basically is what, or communal politics is what? It is based on the premise that that religion is the principal basis of social community. ठीक है, religion is the principal basis of social community. So communalism is actually thinking along the following lines. कैसे है ये? इसमें ऐसा सोचा जाता है कि the followers of a particular religion belong to one social community. ठीक है, इसमें कम्युनलिज्म में जो कम्युनल थिंकिंग है वो ये है कि एक ही रिलीजन के जो फॉलोअर्स हैं दे बिलोंग टू वन सोशल कम्युनिटी, दे बिलोंग टू वन सोशल कम्युनिटी, ठीक है। तो फॉलोअर्स ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन बिलोंग टू वन सोशल कम्युनिटी, देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट आर सेम, ठीक है। इट इज ऑल्सो बिलीव्ड, कम्युनल थिंकिंग also believes that followers of a particular religion have the same interest, okay, any difference that they may have, even if there is some difference, but that difference according to the communal mindset is irrelevant or trivial. मतलब जो differences भी अगर होती होंगी followers of a particular religion में, वो differences कोई बड़ी differences नहीं है, छोटी मोटी differences हैं, trivial है, ठीक है। People of different religions cannot belong to the same social community. अब यहाँ पर यही सोच उसके माने उल्टा यहाँ पे ये सोचते हैं कि भाई जो एक ही रिलीजन के सभी फॉलोअर्स एक ही सोशल कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, जबकि यहाँ पे ये सोचते हैं कि पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, अलग अलग रिलीजन के जो लोग हैं वो एक सोशल कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करते, ठीक है। सो पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स cannot belong to the same social community. इनका ये मानना है कि एक रिलीजन के सभी फॉलोअर्स सेम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, लेकिन अलग अलग रिलीजन के जो फॉलोअर्स हैं वो सेम कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है। इफ एनी कॉमनैलिटीज, अगर कोई सिमिलैरिटीज या कॉमनैलिटीज भी होती है दैट इज फाउंड अमंग द फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, ठीक है, अमॉन्ग द फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, अगर कोई सिमिलैरिटीज है उस केस में क्या बता रहे थे कि अगर सेम रिलीजन के फॉलोअर में कोई डिफरेंसेस है तो डिफरेंसेस छोटी बात है। और यहाँ क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई सिमिलैरिटीज भी है अलग अलग रिलीजन के फॉलोअर्स में तो वो
इमटेरियल है और सुपरफिशियल है, वो बनावटी है और इमटेरियल है, कोई इसमें आप इसमें सब्सटेंस नहीं देखते हैं, ठीक है, कोई सब्सटेंस नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, तो दिस इज रॉन्ग। ऐसा ये कम्युनल थिंकिंग है। फिर अगर हम एक्सट्रीम फॉर्म में सोचे, अगर एक्सट्रीम फॉर्म में कम्युनलिज्म क्या सोचती है, कम्युनलिज्म लीड्स टू द बिलीफ, एकदम क्लियर कट ये बात बोली जा रही है कि दैट पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स कैनॉट लिव एज इक्वल सिटीजन्स, ठीक है, जो अलग अलग धर्मों के जो फॉलोअर्स हैं, अलग अलग रिलीजन के जो फॉलोअर्स हैं, दे कैनॉट लिव एज इक्वल सिटीजन्स। देखिए ये जो पूरी कम्युनल थिंकिंग है पूरी तरह से गलत है, फ्लॉड है, लेकिन हमें आपको समझाना था कि कम्युनल पॉलिटिक्स क्या है, कम्युनलिज्म क्या है, इसलिए उसके जो थिंकिंग है, जो थिंकिंग की जो आधार है या थिंकिंग का जो बेस है उसको आपको बताना था, तो इसलिए आपको बताया गया कि कम्युनल थिंकिंग किसे कहते हैं, ताकि आपको कम्युनलिज्म को लेकर कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ वेरी क्लियर, सो वेरी क्लियरली अंडरस्टैंडेबल। The communal thinking is what it talks about, followers of one religion, they belong to the same social community. Any difference found between them or among them is irrelevant, and they also believe that people of different religions, right, they don't belong to one social community, and any similarities that is found among the followers of one religion is irrelevant, that is also irrelevant, that is superficial, that is immaterial, ठीक है। और सबसे एक्सट्रीम फॉर्म में क्या बताया जा रहा है कि कम्युनलिज्म में ये सोच है कि अलग अलग रिलीजन के लोग वो एक साथ नहीं रह सकते, ठीक है। इसमें जो मेजॉरिटी कम्युनिटी को जो बिलोंग करते हैं वो अक्सर ये सोचते हैं कि हमारी डोमिनेंस हो, एक मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट बने, ठीक है, और जो माइनॉरिटी जो कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले लोग हैं उनको सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट बनाने की एक इच्छा उनके अंदर हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। अब जैसे मैंने बताया कि ये पूरी थिंकिंग ही फ्लॉड है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि सेम रिलीजन के अंदर भी जो लोग हैं, जो फॉलोअर्स हैं, उनमें सीरियस डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, और जो अलग अलग लोग हैं सेम रिलीजन के, to bring them together other than the context of religion, context of religion के अलावा अगर religion के context है सबको you bring them together, that is fine, but other than the context of religion, if we are trying to bring them together, that would mean that we are suppressing different voices, because people, the members of different religious community or the same religious community, if we are now talking about the people of same religious community, they may have different positions, roles or identities, because people might have different or multiple identities, they may have different positions, they may have different roles, and they may have thus different identities। तो इस तरीके से अगर हम रिलीजन के, एक ही रिलीजन के सभी लोगों को साथ लेने की कोशिश करें अदर देन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलीजन, तो ये हम उसी रिलीजन के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, उसी रिलीजियस कम्युनिटी के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, उनके वॉइसेस को कहीं ना कहीं हम सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एवरी पर्सन हैज गॉट अ राइट टू बी हर्ड, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है कि ये जो पूरी थिंकिंग है कम्युनल थिंकिंग, दैट इज फ्लॉड, और ये रॉन्ग इसलिए कही जाएगी क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि एक ही रिलीजन के सभी लोगों का सेम इंटरेस्ट हो सकता है या वो सेम सोशल कम्युनिटी को बिलोंग कर सकते हैं। ऐसा देखा जाता है कि एक ही रिलीजन के लोग अलग अलग सोशल कम्युनिटीज को बिलोंग कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग सोशल कम्युनिटी, मान लीजिए अगर मान लीजिए 2 पर्सन है एक ही रिलीजन के, तो वन में बी बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी ऑफ से डॉक्टर्स, द अदर में बी बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी ऑफ से सम other role he is playing there, like lawyers, okay, so lawyers is one social group, the group of lawyers is one social group, and the group of doctors is another social group, whereas both the people belong to the same religion, दोनों लोग जो है सेम रिलीजन को बिलोंग करते हैं, लेकिन उनके रोल्स अलग अलग हैं, उनकी आइडेंटिटीज अलग अलग हैं, उनके इंटरेस्ट अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। और कई बार जो है डिफरेंट रिलीजन के लोग
जैसे इसमें बताया जा रहा है कि डिफरेंट रिलीजन के फॉलोअर्स हैं, उनकी सोच कभी मिलती ही नहीं। ऐसा हो सकता है कि दो लोग से अलग अलग रिलीजन से आते हो, लेकिन फिर भी दे माइट फील मोर क्लोज टू ईच अदर, they might have same interest. Isn't it quite interesting? So thinking along this line is very very disastrous, not for the society but for the whole nation. Children, in my next video on religion we will discuss the ideology that is in opposition to communalism. We'll be discussing secularism, okay, and we will talk about how, before we discuss secularism, we'll discuss the different forms communalism can take in politics, okay. So that would be possible only in my next video. So 2 videos thus would be made on the topic religion. This is one, and the second one I'll be presenting before you very soon. And as of now, this is it. Hope you like the video. For any questions, queries, do send your questions. And thank you for watching the video. Have a nice time. Bye bye.